Hello children, let's start with the second chapter of history, India, events after 1960. India became independent in 1947 CE. India accepted the constitutional framework in 1950 and became a sovereign democratic nation. The Indian society is multicultural and the people of various languages, religions, ethnicities and caste live together. तो हमारे देश को इंडिपेंडेंस कब मिला था 1947 में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में और फिर हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री था जहाँ पे अलग अलग कल्चर और अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते थे. During the initial period after independence, India needed to solve different issues of economical and political and social development. तो इंडिपेंडेंस के बाद इनिशियल पीरियड में जब हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था तब हमको बहुत सारे डेवलपमेंट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत थी. The establishment of planning commission and the emphasis on industrialization was a means to achieve the economic development and eliminate poverty in India. तो हमने क्या डिसाइड किया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे इंडिया में, मतलब नए नए इंडस्ट्रीज शुरू करेंगे, नए नए बिजनेसेस करेंगे जिससे हमारे देश का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा और हमारी गरीबी दूर होगी. Successful conduct of elections and faith in democratic traditions made it possible for us to achieve the political stability. तो हमने political stability तो achieve कर ली थी, अब हमको economical stability achieve करनी थी. At the same time, several social reforms, including the policies and programs for the weaker sections of the society, were sought to be implemented. तो बहुत सारे नए नए पॉलिसीज बनाए गए थे ताकि हमारे देश की गरीबी दूर हो सके. In 1960s, in the decade of 1960s, several events occurred which had a huge impact on the political situation in India. तो इन 1960 में क्या हुआ कि ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स हुए जिनका हमारे देश पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ. The regions of Goa, Diu and Daman were freed from the Portuguese rule and became parts of the Indian Federation. तो क्या हुआ कि गोवा, दीयू और दमन पोर्चुगीज के रूल में आते थे, तो वो लोग भी फ्री हो गए वो टाइम पे और वो लोग इंडिया का पार्ट बन गए. The tensions between India and China on the northern border, which had been rising since 1950, culminated in the war of 1962 between two countries. This war fought in the region of McMahon Line. तो क्या हुआ कि हमारा जो वॉर चल रहा था इंडिया और चाइना के बीच, वो भी अल्टीमेटली खत्म हो गया. After India became independent, Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru led the country. He was the architect of India's foreign policy. This contribution to the social and economical development of India was significant. तो इन्होंने क्या किया था, हमारे देश में फॉरेन पॉलिसी बनाई थी जिससे हमारा दूसरे देशों के साथ भी ट्रेड शुरू हो गया था. तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट था इंडिया के लिए. जवाहरलाल नेहरू passed away in 1964. तो 1964 में उनकी डेथ हो गई. लाल बहादुर शास्त्री succeeded him and became the next prime minister of India. तो हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री. जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद. During his tenure, India and Pakistan went to war over Kashmir issue in 1965. तो वो टाइम पे क्या हुआ, जब लाल बहादुर शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर थे, वो टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई कश्मीर को लेकर. The Soviet Union tried to mediate between the two countries. तो सोवियत यूनियन ने क्या किया था कि ये दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ कॉम्प्रोमाइज करवाने की कोशिश की थी, मीडिएशन करने की किया था उन्होंने. लाल बहादुर शास्त्री गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान. तो शास्त्री जी ने क्या स्लोगन दिया था? जय जवान जय किसान.
कि हमारे सोल्जर्स और हमारे फार्मर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके भरोसे हमारा कंट्री चलता है या हम सेफ रहते हैं, हमें खाने के लिए मिलता है. With which he highlighted the importance of Indian soldiers and farmers. Lal Bahadur Shastri breathed his last at Tashkent in 1966. तो 1966 में ताशकेंत में उनकी डेथ हुई थी. Indira Gandhi became the next Prime Minister of India in 1966. Her decision making ability was admirable. मतलब वो डिसीजंस बहुत अच्छे से लेती थी, उनका डिसीजन मेकिंग का एबिलिटी बहुत अच्छा था. Her decisions regarding nationalism of banks and cancelling the pensions of princes had far-reaching effects. तो उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे बैंक्स और पेंशन्स को लेकर जिनके बहुत अच्छे इम्पैक्ट्स हुए थे, जिनसे बहुत फायदा हुआ था हमारे देश को. During her tenure, Pakistan's oppressive policies in the East Pakistan resulted in big movement there. तो क्या हुआ कि उनके टाइम पे पाकिस्तान के जो कुछ पॉलिसीज थे जिसके उसकी वजह से एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. This movement was led by Sheikh Mujibur Rahman and his organization Mukti Bahini. This crisis in East Pakistan affected India as well because millions of refugees came to India. तो पाकिस्तान में जो टेंशन हुआ था उसके वजह से क्या हुआ कि उसका असर इंडिया पे भी हुआ, क्योंकि वहां से बहुत सारे रेफ्यूजीज इंडिया आ गए थे. In 1971, war between India and Pakistan led to the creation of an independent country called Bangladesh. तो 1971 में क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के वजह से एक नया कंट्री बन गया जो जिसका नाम था बांग्लादेश. तो बांग्लादेश एक सेपरेट कंट्री बन गया वो टाइम पे. The role of Prime Minister Indira Gandhi's strong leadership was prominent in this issue. तो इंदिरा गांधी के लीडरशिप का एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट रोल था ये इशू के बारे में. As a part of India's policy to use atomic energy for peaceful purposes, India successfully carried out an underground test of an atomic device at Pokhran in Rajasthan in 1974. क्या हुआ कि इंडिया ने एक अंडरग्राउंड टेस्ट किया था एटॉमिक डिवाइस का पोखरन में, राजस्थान में. तो जो हम लोग सक्सेसफुली पूरा कर पाए थे. In 1975, the people of Sikkim voted for joining the Indian Republic and Sikkim became a full-fledged state in the Indian Federation. तो फिर क्या हुआ 1975 में सिक्किम भी हमारे इंडिया के साथ जुड़ गया. During this decade, the political situation in India grew unstable. But ये टाइम पे ऐसा हुआ कि हमारी political situation जो थी इंडिया की वो थोड़ी unstable हो गई. The Allahabad High Court gave the verdict in 1974 that Indira Gandhi, the then Prime Minister, had misused the government machinery during her election campaign. तो उस टाइम पे इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आया था जिसमें ऐसा बोला गया था कि इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट के मशीनरीज का कुछ मिसयूज किया है अपने इलेक्शन की कैंपेनिंग करने के लिए. इट लेड टू नेशन वाइड स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट. तो क्या हुआ पूरे देश में स्ट्राइक होने लगे और सब लोग प्रोटेस्ट करने लगे. ड्यूरिंग दिस पीरियड the situation became more complicated due to the movement led by जयप्रकाश नारायण. तो क्या हुआ कि जयप्रकाश नारायण ने एक नया मूवमेंट चालू किया जिसकी वजह से चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई. The situation of law and order in the country worsened and the government declared a state of national emergency on the basis of constitutional provisions related to emergency. तो ये स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट और अलग अलग मूवमेंट्स की वजह से इतनी हालत खराब हो गई कि हमको पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी. ड्यूरिंग दिस टर्बुलेंट पीरियड, टर्बुलेंट मतलब जिसमें जहाँ पे बहुत उथल पुथल मची हो या बहुत सारे चेंजेस आ रहे हो. ड्यूरिंग दिस टर्बुलेंट मूवमेंट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स वर सस्पेंडेड. तो हमारे इंडियन सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो भी उनसे छीन लिए गए.
Due to the emergencies, the Indian administration became disciplined, but the human rights were restricted. तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा डिसिप्लिन तो आया, बट हमारे ह्यूमन राइट्स जो थे वो हमसे छीन लिए गए थे, उन पे रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे. The period of national emergency lasted from 1975 to 1977 and after that general elections were conducted. तो national emergency का situation 2 साल तक चला, 1975 से 1977 तक. उसके बाद फिर general elections conduct हुए थे. On the backdrop of the emergency, many opposition parties came together and formed a party called the Janata Party. तो फिर क्या हुआ इमरजेंसी के टाइम पे कि बहुत सारे ऑपोजिशन पार्टी वालों ने मिलकर एक जनता पार्टी बनाई. तो कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी वाज राउंडली डिफीटेड बाय दिस न्यूली फॉर्म्ड जनता पार्टी. तो क्या हुआ कि जनता पार्टी बनने की वजह से कांग्रेस डिफीट हो गया इलेक्शन में, मतलब हार गया. Morarji Desai became the prime minister, but under his leadership the Janata Party government couldn't last long due to internal differences. तो क्या हुआ कि मोरारजी देसाई तब प्राइम मिनिस्टर बने, बट उनके लीडरशिप के अंडर ज्यादा दिन जनता पार्टी ठीक से चल नहीं पाया, क्योंकि उनके पार्टी में आपस में लोगों में कुछ डिफरेंसेस थे. मतलब वो लोग सब अलाइन नहीं थे, या सब लोग सेम बात नहीं करते थे, सबकी सोच समझ अलग थी. Charan Singh succeeded him, but even his government was short-lived one. तो क्या हुआ कि मोरारजी देसाई के बाद चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, बट वो भी ज्यादा दिन तक देश नहीं चला पाए. Elections were conducted once again in 1980. 1980 में फिर से elections हुए, and the Congress party under the leadership of Indira Gandhi came to power again. तो 1980 में फिर से कांग्रेस जीत गई और इंदिरा गांधी का रूल फिर से स्टार्ट हो गया. In 1980s, during this decade, the Indian political system faced many new challenges. तो 1980 के टाइम पे क्या हुआ 80s में कि फिर से कुछ नए पॉलिटिकल इश्यूज आए, इंडिया में कुछ चैलेंजेस आए. The Sikh in Punjab demanded an independent state of Khalistan and began a movement which went on to become violent and destructive. तो वहाँ पे जो सिख थे पंजाब में, उन्होंने कहा कि हमको एक अलग से हमारा इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए जिसका नाम होगा खालिस्तान. और उन्होंने भी कुछ ऐसे कुछ एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी, कुछ बगावत स्टार्ट कर दी जो बहुत ज़्यादा वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव थी. पाकिस्तान हैड लेंट इट्स सपोर्ट टू दिस मूवमेंट, और पाकिस्तान भी इस मूवमेंट का सपोर्ट कर रहा था वो टाइम पे. The Indian army was sent to the Golden Temple at Amritsar, a holy shrine of Sikhs, in 1984 to evict the terrorists who had allegedly taken shelter there. तो क्या हुआ कि हमको हमारे आर्मी को भेजना पड़ा गोल्डन टेम्पल में अमृतसर में 1984 में. वहाँ पे कुछ टेररिस्ट छुपे हुए थे, उनको ढूंढने के लिए हमारे आर्मी को भेजा था. One of the bodyguards of Indira Gandhi personal security assassinated her. तो क्या हुआ कि इंदिरा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी ने ही उनको गोली मार दी. During this period, an organization called United Liberation Front of Assam (ULFA) carried on a major movement in the northeast India. तो अब ये ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया था नॉर्थ ईस्ट में. Right after Indira Gandhi's assassination in 1984, Rajiv Gandhi became the Prime Minister of India. फिर क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी के डेथ के बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए. फिर he tried to make several reforms in the field of Indian economy and that of science and technology. तो उन्होंने क्या किया कि इंडिया की इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने के लिए और साइंस और टेक्नोलॉजी में और एडवांस्ड होने के लिए बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश की अपने देश में. He took the lead in solving issues of the Tamil ministry in Sri Lanka. तो श्रीलंका में तमिल मिनिस्ट्री का कुछ इशू चल रहा था, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करने के लिए उन्होंने लीड लिया, मतलब वो आगे बढ़े. He promoted the idea of united Sri Lanka with
eternal autonomy to the Tamil community, but this efforts in this regard proved to be in vain. तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने तमिल श्रीलंका और तमिल कम्युनिटी को यूनाइट करने की कोशिश की थी, बट वो एफर्ट कुछ काम नहीं आया. इट वेंट इन वेन. He faced a lot of criticism in the context of corruption that took place during a defense equipment deal, especially the purchase of long-range cannons from foreign company called Bofors. तो बोफोर्स जब हमको खरीदना था कुछ फॉरेन कंट्रीज से, तो वो टाइम पे बहुत करप्शन हुआ था, क्योंकि वो बहुत बड़ी डील थी और उसमें राजीव गांधी को बहुत बदनाम किया गया और उन्हीं पे इल्जाम लगे करप्शन के लिए. Political corruption became a critical issue in the general elections that followed. The Congress party was defeated. तो क्या हुआ कि ये करप्शन इशू बहुत सीवियर इशू बन गया हमारे देश में, और उस वजह से फिर ऐसा हुआ कि नेक्स्ट इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी हार गई. Several political parties formed a coalition called Janata Dal, and विश्वनाथ प्रताप सिंह became the next prime minister of India. फिर क्या हुआ कि काफी सारे दूसरे पार्टीज ने मिलकर एक जनता दल बनाया और फिर विश्वनाथ प्रताप हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए. The policy for providing reservations for other backward classes (OBC) is considered to be his most important contribution. तो उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक रिजर्वेशंस कुछ रखे थे कि उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व रखी थी, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था उनका. ही कुड नॉट कंटिन्यू एज प्राइम मिनिस्टर ड्यू टू इंटरनल डिफरेंसेस इन द पार्टी. तो क्या हुआ कि उनके पार्टी में आपस में लोगों के कुछ मतभेद अलग अलग थे, जिसकी वजह से वो ज्यादा दिन तक प्राइम मिनिस्टर बन के नहीं रह पाए.